entitled Incorporating Cultural Components of Indian Heritage in School Education, विद्यालयीन शिक्षा में भारतीय विरासत के सांस्कृतिक तत्वों का समावेश, एनईपी प्रतिबिंब. It is with reflection of National Education Policy. And after welcome you, I wish to inform you two of very important, significant things with you. Today is very auspicious for us, as you all aware, and the huge team from your group have participated in International Day of Yoga with CCRT. आप में से बहुत सारे लोगों ने योगा में आज पार्टिसिपेट किया, हम सभी उस ग्रुप में थे. And this is the magic of Indian science. The UNO has accepted International Yoga Day. It has been declared in 2015. 2015 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने योग को, यौगिक साइंस को एक नेचुरल साइंस के रूप में पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया और उसको अब पूरे विश्व में प्रैक्टिस की जा रही है. केवल भारत की बात नहीं है, तो भारत से निकल के ये साइंस पूरे विश्व में गया. ये प्राउड का मैटर है, हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारतीय साइंस को पूरे विश्व में लोग सभी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं. और सेकंड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द CCRT, now as you are the member of the CCRT joining this workshop with us, I wish to inform you with vision of Honorable Chairperson Dr. Hemlata S. Mohan and Director Sir Sri Rishi Kumar Vasisht. On 19th June 2021, the CCRT, we inaugurated our 4th regional center. और ये इनॉग्रल हमारे माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के कर कमलों से हुआ. तो ये हमारे लिए खुशी की बात है. हमने उसके बाद इमीडिएट वहाँ के डीओ सर को अप्रोच किया और वहाँ डीओ साहब ने 10 टीचर वहाँ से भी इस प्रोग्राम के लिए कनेक्ट कर दिया, डेप्यूट कर दिया. मीन्स ये है कि हमारे साथ दमोह रीजनल सेंटर का कंट्रीब्यूशन यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है. सो वी फील प्राउड, वी फील प्रिविलेज्ड दैट द 4th रीजनल सेंटर came in being with the CCRT, and now you all are attending this program from regional center Guwahati. I wish to tell you detail about our e-learning programs through online mode. As you all evolved during this COVID-19 in last year, when it has came to our country, we started to cope up with this, fight with this problem, this disaster, this pandemic. So last year in school system, in education system, all we evolved. We transformed our data, syllabus, teaching learning materials for online mode. And we are learning how to deal with digital media, and we are reaching to huge number of students, and in case of CCRT we are reaching to huge number of teachers through this e-learning program. The CCRT, now I'll tell you about CCRT, then to the story of e-learning process, then I'll hand over to the consultant regional center Guwahati to welcome you from Assam, and we'll move forward accordingly. If you go through the website of CCRT or the history of CCRT, the CCRT organizes training programs which are aimed at linking education with culture and designed for dissemination of Indian culture at national level by training in-service school teachers and teacher educators for incorporating cultural components in classroom teaching. These programs help in preservation and promotion of diverse culture, its awareness and tradition in all parts of the country. The training program orients the participating teachers, students toward
rich fabric of artistic and cultural heritage of India. Since April 2020, due to COVID pandemic and related restrictions, the CCRT also is organizing various thematic e-learning workshops. Till now, we organized 27 e-learning workshops and we trained more than 3,000 teachers from all directions, from all parts of the country, and more than 200 artists, resource persons have been associated at CCRT e-learning platform during this period with objective to continue the teaching learning process on regular basis and to integrate Indian culture and school system. We received a significant number of feedback from all of you from the teacher fraternity that these workshops are very helpful to teachers to learn about Indian culture, especially during this lockdown unlock process and methodologies to inculcate in classroom teaching. Learning from your feedback during last 2 years, we had several meetings, rigorous meetings and workshops under guidance of our Honorable Chairperson, Dr. Hemlata S. Mohan and Director Sir. We had meeting with eminent resource persons, artists, faculties from various universities with objective to revamping our training programs and to develop thematic modules for various programs. These programs are based on guideline of National Education Policy. Now, we welcome you for its 28th e-learning program that is incorporating cultural components of Indian heritage and school system. विद्यालयीन शिक्षा में भारतीय विरासत के सांस्कृतिक तत्वों का समावेश, रिफ्लेक्शन NEP 2020. I congratulate you that now you are the part of CCRT. आप सभी को बेस्ट विशेस और बहुत सारी शुभकामनाएं कि इस ऑस्पिशियस डे में आप हमारे साथ, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं आपको निवेदन करता हूं, आगे ये ध्यान रखें कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रखें, अटेंडेंस पूरे 5 दिनों का आपका होना चाहिए. यू मस्ट अटेंड द 5 days प्रोग्राम, otherwise we will be failing to provide you the certificate for 5 days attendance of this program. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे 5 दिन आप इसको थॉरोली अटेंड करें. नेक्स्ट, फॉर टू एड्रेस द प्रोग्राम एंड टू वेलकम यू फ्रॉम द रीजनल सेंटर गुवाहाटी, आई वेलकम माय कलीग श्री प्रदीप पुजारी जी. सर प्रदीप पुजारी जी, नमस्कार. नमस्कार. Now over to you, sir. Around we connected more than 250 teachers from more than 12 states, and very soon we'll get the attendance according to their registration, sir. Now over to you. Thank you everyone. Hello everybody. Yes, you are audible, sir. Yeah. So first of all I offer my thanks to my colleague Dr. Sandeep Sharma, who has started the session with his very informative feedbacks. So now, today we are going to have our first day of our e-learning program, incorporating cultural components of Indian heritage in school education. So this is the 28th e-learning program, as Dr. Sandeep said. So we are very much privileged to have you amongst us, and we must be thankful to the state directorates and concerned authorities who have contributed with a huge number of TISA participants, and now actually we are in our full capacity. So this is a very important and very
interesting to say that in spite of all these pandemic period, all these happenings in pandemic period, you are so much enthusiastic to join in this e-learning program. So first of all, I welcome you everybody. I welcome you everybody to the e-learning program hosted by CCRT Regional Center Guwahati. On behalf of CCRT Regional Center Guwahati, I welcome you all and hope you will have a very purposeful and fruitful program now. So regarding the program, I want to tell you that we have the 5-day program. Every day you will have at least 2 valuable lectures and other some interaction programs. The subjects, those were selected with very much care and very much significance that has been designed by CCRT on the basis of new education policy 2020. The teachers are the backbone of the country. You have to teach the student. You have to make the student learn everything. So you must be equipped with all academic and intellectual elements. And the National Education Policy 2020, it gives you the broad scope of learning and teaching. So this time CCRT is conducting the workshops and e-learning programs as per the guidelines and as per the motto of New Education Policy 2020. Regarding the, if I say about the aims and object of the program, is very simple. You know that it will, you know, now we are in a pandemic period. We cannot gather amongst us in any regional center or anywhere for a physical mode of training. Definitely physical mode of training is very much effective and very much collaborative, and people will come to each other, come to closer to each other from different states of India. So they are assimilate, they exchange culture, they exchange thoughts. So physical mode of program is the best mode of program. But now we are helpless. Our country is in such, not even country, the whole world is in such a position. So we cannot gather in a number 200, 100, 300 or something like that somewhere, staying together and sitting together. So we have to design for such online activities because our teaching and learning process cannot stop. It cannot halt to anywhere. It must proceed, it must go on. That's why CCRT has planned to conduct these online workshops since last year. From the starting of the pandemic period, the CCRT has started its online workshops and e-learning programs. This will bring CCRT to your doorstep. The expert with their thoughts and ideas, with their valuable guidance, they are going to your doorstep through online mode. By sitting in your place, sitting in your home, you are enriched with the present learning process and you are going for a very prospective future. So to create an awareness about Indian culture, its continuity and diversity, its richness, with an objective to instill in all educators, through them to the students, a pride of national heritage. You must know about the pride of national heritage that will be communicated through many subjects, many good subjects, through many experts. They will analyze the things
they will analyze the proceedings to provide an opportunity to educate, sensitize, and motivate in-service teachers. Teacher education is in view of national education policy. So this is an opportunity. The online program is the opportunity through which you will learn a lot so that you can be equipped with all learning process, all teaching process, and you will deliver it to the students in your classroom. To create an understanding of the need of cultural education and create action plan for, yes, cultural education. You know, the motto of CCRP is the linking education with culture. Education and culture, it is very much linked to each other. So in the process of learning, in the process of teaching, you have to be incorporated with the cultural elements. You have to know the rich, diverse Indian national heritage so that you can communicate to your students. Regarding this, we are privileged to host this program from Guwahati because we have 4 places of training activities, that is Delhi, Udaipur, Rajasthan, and Guwahati. So Guwahati, you know, is a prime center of Northeast. You can say it is the most prominent place of Northeast, is a gateway of Northeast. So you know about Northeast. The Northeast is a huge potential. Northeast is having huge potential of cultural and national heritage. It has long history of cultural heritage, ethnicity, diversity, everything. So many rich cultural heritage of many tribes and ethnic groups of northeastern region. They have, all of them have set a separate identity with separate culture, with separate customs, but bonded together with the nationalism. So through the process of learning in CCRT Regional Center Guwahati, through our expert, through our subjects, you will have a sense of, you will have an idea of the Northeast, its cultural heritage and its cultural diversity. We will be very much privileged if we can invite you to Guwahati for physical program when pandemic situation will over. Here you will see a lot of things. Here you will assemble and exchange your cultural thoughts, exchange your minds, and we are waiting for them. But till then, we will continue this process. We will continue this online system, and we will educate you through our eminent experts, through very useful subjects, so that you don't feel the time gap of pandemic period. Your pandemic period is also utilized by this process. Through this kind of exchange program, you can understand, you can develop understanding amongst yourself. You can develop understanding within the Indian culture, new education process, NEP 2020, what it says, why NEP 2020 is so scientifically designed that will provide you the things, a new dimension. So you learn through the lectures of our eminent experts, and definitely we are waiting for these all 5 days that you will continue to learn here.
And one more thing, I'm telling you, we are having some technicalities and academics. We have many things to be discussed, and that has already been explained to you by Dr. Sandeep Sharma, and he will be all along with you in all these 5 days, and every day he will tell you the things, academic things, technical things, and your application to it. Moreover, we have our very learned technical training consultant, Madam Saloni Priya. You will also listen to her. She is a very experienced and very dynamic with his immense teaching experience. So you will be benefited through her lecture also. Then you will get our experts. But one thing I want to retaliate here. This is the first time, I think not first time, but it's a very good occasion that we are having so much of attendance, so much of teachers. But please, it's an appeal from us, please be regular in all the 5-day program. You please be regular, attend all classes, be regular, please sit in a isolated good place, free from all disturbance, free from all outside disturbance, noises, and put your mind, put your concentration to the learning process. And I am telling you, without your presence, without your attendance, this program has no value. So you please be attentive and attend the sessions regularly. And one more technical problem is also there. We will have the system of monitoring the attendance. So that by that way, we will find out whether you are eligible for getting a certificate or not, because certificate will be awarded to those participants who have attended all the classes with the presence. So now we are opening the door today. We have the lectures like after this short speech, our training consultant, Madam Saloni Priya, she will address you. After that, we have some very eminent experts for all proceedings of the 5 days. And today your expert will be Dr. Manjil Hazarika. He is a very eminent expert on archaeology and heritage. You will learn a lot of things from him today. And his subject is building scientific temper in children by introducing ancient Indian monuments and its rich artistic beauty and scientific magnificence. Is a very relevant and a very grassrooted subject. You will be privileged to learn from him. And the following days also, we have a lot of good experts. I do not hesitate to tell you that Guwahati, CCRT Guwahati is equipped with many learned experts. And today, in front of all of you, I am telling you that this expert base was created by Dr. Sandeep Sharma. He is there. He has addressed you in the opening. So, through these eminent experts, our expert base, if you come to
any program of Guwahati Center, in future also, not this, after that one, another July, August, September, you will have some lot of experts, a good number of experts, very diverse and very dynamic persons, and you will learn a lot of things from them. And regarding your participation, we are overwhelmed. We are overwhelmed by your attendance. We must be thankful to the state directorates and concerned authorities. They have sent you to attend the online program organized by CCRT in a light of new education policy. Previously, when we have started online program last year, attendance was not that sufficient. The people were less because the introduction to any new system, introduction to any new method of learning, initially some problems are there, but slowly gradually we are coming out of it. And now we are having more than 200, and today we are having more than 250 learned teachers with us. And we are very much lucky to have you all amongst us. So now, I will not take much of the time. Today, probably you have attended the yoga also. From 8 to 8:30, you have attended the yoga session also. You know the importance of yoga, especially in pandemic period. Even doctors say that to survive from pandemic, you have to boost up your strength, mental and physical strength. So yoga and pranayama. So today you are lucky that just the beginning of the first day, you had that magnificent yoga session. That way you have boosted your mental, you have already boosted your mental status, and now you are ready to intake everything our expert will say. Anyway, I welcome you all again and request you to to go with the proceedings of the workshop with your regular attendance and discipline. And now I am transferring my microphone to Dr. Sandeep Sharma, and he will take you along with the process of CCRT, because he is a very much, he is almost hardcore training professional. So learning from me, learning from Sandeep Sharma is far, far better than learning from me. So all these 5 days we will be together. We will not even learn, not to even teach. You will have the performances of Satriya dance, you will have performances of Indian theatre, you will participate in the program, we will participate in the program. So let's hope for a very, very, very nice period ahead. Thank you all. Thank you very much. Or as per the program schedule, now we have to move forward to the session and to classes. And I take this opportunity to introduce one of my eminent colleague and a very eminent psychologist, Madam Saloni Priya. We heartily welcome you, ma'am. Ma'am is working in the field of education and psychology and teachers training from last 25 years in this country. And she is the executive director of Umeed, one of the nationally acclaimed organization, voluntary organization. Madam is associated with very learned academic research bodies in the field of psychology and educational development. And now Madam Saloni Priya is working as consultant with training section CCRT. We are revamping many of programs, training programs for you. She is one of the strength of this training section, CCRT. Thank you, ma'am, being with us. And
I welcome you. Now we received more than 250 teachers from more than 12 Indian states. Teachers are from all parts of the country, very disciplined and learned team I saw. On behalf of this team and CCRT Regional Center Guwahati and New Delhi, we welcome you, ma'am. Thank you, Saloni ma'am. Over to you. A very good morning to all the educators. Thank you, Dr. Sandeep, our Deputy Director Training, for leading, and Mr. Pujari for being here today in the morning with these 250 plus educators. So a very, very big hand to all of you. अपने दोनों हाथों को साथ में लाइए और जोरदार ताली से आज हम शुरुआत करते हैं. और ये तालियां हैं आपके अभिनंदन के लिए, मेकिंग यू द कोरोना वॉरियर्स. और देखिए फिर आज हम एक इतिहास रच रहे हैं. So many of you from the most beautiful eastern part of our country. I love Guwahati, Shillong and all these places. And dear teachers, coming on CCRT platform in itself is a celebration. So, Ranjay sir, let the presentation move, please. Okay, I invite each one of you to take a journey. The very first day inaugural of this training program, it was with yoga celebration. I saw more than 45 teachers joined us today in the morning. Thank you for being fit, because fit body only will have fit mind. And fit body and mind will move towards a new India. This program under the CCRT banner is celebrating the 75 years. हम उस उत्सव की ओर बढ़ रहे हैं. And I want each one of you to see this 5-day training program as somewhere deep down connecting to our roots. Next slide, please, Ranjay. So, yoga, mind and wellness. And I am a psychologist. I have been working in this field of education for last 24 years. And my major focus has been that the study of psychology should be creating a better society. It should not be treatment. Ranjay sir, you need to mute please and kindly let the slides carry on. They are on the mode. उनको बढ़ने दीजिए अपने से please. Please put an enter to the slide so that it moves. The technical issues, we are all learning. Continue, and I am sure enabling people. We today, education and psychology are very deeply connected. जब स्कूलों की स्थापना की गई थी तो यही था नेक्स्ट कि साइकोलॉजिस्ट मनोविज्ञान और सोशियोलॉजिस्ट जो सामाजिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने स्कूलों की स्थापना की थी कि एक बच्चा अपने घर में अपने माँ बाप के साथ प्यार, बहुत सारा स्नेह और परवरिश शुरू करता है, लेकिन 6 साल, 7 साल, 5 साल के बाद उसको एक ऐसे सामाजिक संस्था की जरूरत है जहां माँ बाप की जगह उसके गुरु उसको विविध प्रकार की संगीत, कला, विज्ञान, साइंस, आर्ट्स, गणित, हिस्ट्री, इस तरह के विषयों से उसको पारंगत करें. नेक्स्ट, एंड दैट इज वाई आप देखिएगा कि सीबीएसई ने, स्टेट बोर्ड्स ने बहुत सालों से एजुकेटर्स को ये ट्रेनिंग देनी शुरू की कि हमें किस तरह से अपने स्कूलों को बदलते हुए परिवेश के लिए तैयार करना है. नेक्स्ट, भारत के विभिन्न भागों में पॉजिटिव साइकोलॉजी, एक होलिस्टिक हेल्दी कम्युनिटी, किस तरह से हम बच्चों को उस तरह की शिक्षा दें जो उन्हें आने वाले कल के लिए तैयार करती है. एंड दिस इज व्हाट, चाहे वो विलेज स्कूल्स हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, रीजनल बोर्ड्स के स्कूल्स हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो, पिछले
20 सालों से मैं इससे जुड़ी हूं और आज ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि CCRT के प्लेटफॉर्म से कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हम अपने एजुकेटर्स को यहाँ पे इन 5 दिनों में हमने एक गुलदस्ता सजाया है जिससे आप इंस्पायर हो, आप एम्पावर हो और आप स्कूलों में जाके फिर एक नए उत्साह और एक नई प्रेरणा का संचार करें. It is a teacher who inspires. Next slide, please. It is a teacher who inspires. It is a teacher who creates a reality for the student. एक वो टीचर जौहरी की तरह काम करता है, हीरे को परखता है. और आज देखिए लाइफ स्किल्स एजुकेशन की शुरुआत हुई है और CCRT पिछले कई सालों से लगातार बच्चों के स्किल्स डेवलपमेंट के लिए टीचर्स को ट्रेन करता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. टुडे माहौल है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दे कम टुगेदर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समाज में हम कोई डिवाइड नहीं चाहेंगे. आने वाली जनरेशन को हमें एक तरह से तैयार करना है और आज ये जो हमारी बातचीत है ये 5 दिनों तक जारी रहेगी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. This is the inaugural day. Today we start with giving our regards to our chairperson, Dr. Hemlata Mohan. You have to go back, Ranjan sir. I was speaking on the slide with chairperson's picture. One more slide back, and can we please be a little careful now and attentive, Ranjan sir? Go back to the slide where we can see our chairperson, ma'am. Thank you. I will tell you when to proceed the next slide. So my dear educators, thank you for joining us today. I am sure many of you, in spite of many constraints, have joined us and we are very grateful. And we look forward to your contribution to CCRT in terms of creating this new India. Our chairperson, Dr. Hemlata Mohan, has been an educator for 30 years. She has been a philanthropic community social worker who has a vision that how schools and teachers, when they are empowered, they will create the new India. And that new India is the new education policy. In this entire 5-day, you will have eminent resource persons sharing with you how the new education policy today emphasizes on certain core principles which CCRT has always believed in. Our culture, our age-old traditions. Today, we will learn from our experts that many of our temples and our monuments, they were not only place for worship, they were place for creating community connect. They were places with great scientific architecture. And that is where life has science and art together combined and in harmony. Next slide. In the month of March, in spite of pandemic, when we had a little relief, you can see here our honorary chairperson, our director sir, along with Sandeep ji and myself with some teachers. We had this 7-day program conducted here in Delhi campus. I do hope that many of you might have come to the Delhi Dwarika CCRT office and sat in this auditorium and attended sessions. Those who haven't, I am sure in times to come you would have that opportunity. The campaign was, let us empower educators. Our educators are talented, you have knowledge, you have subject expertise, you are connected to children. Now, can we give you more power with more inspiration so that you become a source of hope? Next, what are these core issues which we would like teachers now to work on? And let us see, this picture on your screen is today's reality.
And tell me, friends, has pandemic stopped education? The reality is, my congratulations to all of you, because our classrooms are empty, but we have now moved to Zoom rooms and Google Classes. And these have been, congratulations to teachers. We give you a very, very big hand, teachers, for the way you have changed, adapted. Next. E-learning. This has become the new norm. Small cities, small towns and kasbas of India, the people pulled their socks and teachers came forward. It is teachers like you who decided we will have technical upgradation. हमने बच्चों से सीखा, आप में से बहुतों ने सीखा होगा बच्चों से, हाथ ऊपर करिए. I also learned from my children. लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने give up नहीं किया, right? Or what happened? We started creating history. Raise your hands. How many of you feel कि yes ma'am, पिछले एक साल में हमने डिजिटल अपग्रेडेशन किया, हमने लर्न किया. तो पैंडेमिक ने क्या किया? टीचिंग लर्निंग को नया आयाम दिया. हमारे बच्चे तो सीखते ही थे, पर हम भी सीखने लगे एंड ब्लेंडेड लर्निंग आ गई. Thank you so much, educators. Thank you for being with me. I can see more than 40 hands up on my screen. Wonderful. And देखिए, यही है डिजिटल टेक्नोलॉजी. आप नागालैंड में है कि मणिपुर में है कि शिलोंग में है कि राजस्थान में है कि श्रीनगर में है कि कोची में है, आज इस डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमें जोड़ दिया है. आप मेरी बात सुन पा रहे हैं और आपके ये डिजिटल हाथ ऊपर से मैं सुन पा रही हूँ कि यस, वी आर ऑल टुगेदर. और यही है ब्लेंडेड लर्निंग. हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है. The teachers now have to be alert. हमें अपने चारों तरफ की चीजों से अलर्ट रहना है. हमें देखना है कि वो क्या चीजें हैं जिनको हमें समझना जरूरी है, जिनके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है. अडैप्ट, हम सबको बदलाव का साथ देना है. हम ये नहीं सोच सकते हैं कि मैम थोड़े दिन में इट विल बी बैक टू नॉर्मल. बैक टू नॉर्मल नहीं होगा. अब हमें अपने दिमाग को गियर अप करना है. Now it is moving forward to new normal, एक नई तरह की जीवन शैली. And that is why हमें इसे accept करना होगा. We have to accept how to move with this. So well done educators. And जब हमने इतना किया है तो अब आगे और भी बहुत सारे रास्ते हैं जो हमें तय करना है. Next. I will keep using English and Hindi, both teachers. This is the National Education Policy slide. Additional key areas: transforming education, new route of higher education and school education becoming more holistic, more emphasis on the principles and ideology of our rich Indian tradition. So what National Education Policy is today emphasizing, CCRT has always lived these principles. And that is what our chairperson always says, that these training programs from CCRT have to focus more and more on giving power to teachers. Because देखिए, जब सामाजिक संस्था एजुकेशन के लिए बनाई गई थी, तो हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से रामायण एंड महाभारत टेल्स अस कि बच्चों को गुरु के यहाँ भेजा जाता था और वहीं पे उनकी एजुकेशन, लाइफ स्किल ट्रेनिंग, वैल्यू सिस्टम और कंप्लीट प्रशिक्षण होता है. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दैट अगेन. नेक्स्ट. ये सारा कुछ आप अगले 5 दिन में जब सीखेंगे तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका अपना मेंटल हेल्थ. आजकल सभी मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं पैंडेमिक में. और मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है? मेंटल हेल्थ का मतलब है हमारा सोच. ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, ये बड़ा डायनामिक है. लगातार इसमें सोच आती रहती है. हमारा ध्यान कभी लगता है, कभी बटता है. कभी ये ह्यूमन माइंड ही सेंटर ऑफ इमोशंस है और सेंटर ऑफ इमोशंस दिल नहीं है. हम कहते हैं कई बार दिमाग से सोचो, दिल से नहीं. बट द फैक्ट इज कि आपका दिल एक पंपिंग ऑर्गन है बॉडी का. वो सोच नहीं सकता है, ना वो किसी चीज को महसूस कर सकता है. Feelings and emotions are also part of the human mind. And that is why teachers, all of us, when we talk mental health, we talk about how our mind can be trained and can be kept into a frame
which is proactive. प्रोएक्टिव शब्द लिखिए और इसका इस्तेमाल करिए टीचर्स। मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ कि आप अपनी भाषा में अपनी सरलता से ये बच्चों और पेरेंट्स तक पहुंचाइए। प्रोएक्टिव का मतलब है हम पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और सकारात्मक रहते हैं। और ये सोच आती है जब हम लगातार अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम के साथ रहते हैं। आज आप सब अपना स्कूल मिस कर रहे हैं कि नहीं? हम बच्चों को भी मिस कर रहे हैं। डिजिटल में हम पढ़ा तो जरूर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोशल कनेक्ट की कमी है। और इसीलिए ये जो सोशल कनेक्ट है, हमारा परिवार है, हमारे वर्क प्लेस की जो कम्युनिटी है, हमारे जो बच्चे हैं, जब वो बच्चे हंसते हैं, आपकी किसी बात पे बच्चे हाथ उठाते हैं, बच्चे आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, दे कम्पीट, नो मैम लुक एट मी, मैम आई एम रेजिंग माय हैंड। ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे माइंड में रजिस्टर करती हैं और हमें एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस देती है। वी फील वैल्यूड, वी फील कनेक्टेड, वी फील यस आई एम इम्पोर्टेंट। एंड दैट इज व्हाई टीचर्स, ये जो हमने कोरोना काल में बहुत कुछ सीखा, हमने मास्क पहना, हमने सैनिटाइजेशन किया, लेकिन हमने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया, सोशल डिस्टेंस। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि मेरे वक्तव्य को सुने और खुद डिसाइड करें, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग चाहिए ना वायरस से बचने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों चाहिए? फिजिकल डिस्टेंसिंग इज इनफ फॉर अस, सोशली वी नीड टू कम टुगेदर। जैसे कि हम आज सीसीआरटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे साथ आए। नेक्स्ट स्लाइड। अनसर्टेनिटी इन लाइफ। आज हमारे चारों तरफ ये पैंडेमिक में जो अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल पैंडेमिक है, देशों ने मिलकर मुकाबला तो किया है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे घरों में बहुत से हैं जिन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों को, परिजनों को खोया है। सो देयर इज ग्रीफ, देयर इज फियर, देयर इज वरी, और चूंकि हमारे चारों तरफ अनसर्टेनिटी है, तो आप जानते हैं इस समय विश्व में बहुत से रिसर्च हो रहे हैं। मैं खुद एक ऐसे रिसर्च का पार्ट हूं जहां पे एशियन कम्युनिटीज पे रिसर्च है, और हम किन चीजों का उदाहरण ले रहे हैं कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, ज्यूस का होलोकॉस्ट हुआ था, इस तरह की बड़ी बड़ी, जब गुजरात में हमारे इतने बड़े भूकंप आए थे, उसके बाद जीवन वापस कैसे चला, उस समय लोगों की क्या प्रक्रिया थी, लोगों ने क्या सोचा, दैट वी विल बी एबल टू again come back to life. And that is why, that is mental spirit, enthusiasm, inspiration, ये इंसान के सबसे बड़े हथियार हैं। और इसीलिए जब मैं मेंटल हेल्थ पे काम करती हूँ तो हम टीचर्स को यही सिखाते हैं कि आप समझिए कि ये अनसर्टेनिटी आपको परेशान कर रही है, उसको एक्सेप्ट करिए कि मैं परेशान हूँ, और फिर सोचिए कि हम उसको कैसे डील करेंगे। पुअर कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन कम होना, कभी कभी ये महसूस करना कि जीवन में सब कुछ बेकार हो गया है, डिप्रेशन टाइप की फीलिंग आना, किसी चीज में मन नहीं लगना, ये सारे बड़े ही नॉर्मल सिम्टम्स हैं इस समय। इसीलिए मेंटल हेल्थ में हमने कहा है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। कभी कभी जब हमारा मन इस तरह से विचलित है तो इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल, डोंट गेट अपसेट बट लर्न टू डील विद इट। नेक्स्ट प्लीज। हम कैसे इन चीजों को डील कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज है ह्यूमन बीइंग्स वी क्रेव सिक्योरिटी। ह्यूमन बीइंग्स को हमेशा क्या चाहिए? सिक्योरिटी। इसीलिए हमारी जॉब सिक्योरिटी, हमारा प्रिंसिपल हमें जब तारीफ करते हैं, जब आप किसी बच्चे की तारीफ करते हैं, शाबाश अनंत बहुत बढ़िया, तो क्या होता है? इंसान का जो फीलिंग है, इमोशन है, वो हैप्पीनेस में जाता है और हमको क्या लगता है? यस आई एम इम्पोर्टेंट, हाँ मेरा कुछ वजूद है, मेरा व्यक्तित्व है, मेरी एक आइडेंटिटी है। और इस समय टीचर्स, अगर आप में से किसी को भी नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, फियर आ रहा है, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट वर्किंग। योगा है, प्राणायाम है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन देखिए एक साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिस्ट के रूप में मैं यही बताना चाहूंगी कि ये सारा कुछ हमारे दिमाग से शुरू होता है। हमारा दिमाग सैटेलाइट क्रिएट कर सकता है, यान क्रिएट करके, रॉकेट क्रिएट करके हमें मंगल ग्रह पहुंचा सकता है,
लेकिन यही दिमाग हमें एक जगह बैठे बैठे इतना डिप्रेस कर सकता है, क्योंकि दिमाग थॉट्स बनाता जाता है। हमें अपना विवेक चाहिए कि हम उनमें से किन थॉट्स को चूज करें, अपने आप से हम क्या बात करें और हम क्या महसूस करें, क्या हमें एक रियलिटी बनानी है। क्योंकि देखिए, जो भी कोई रचनाकार है, चाहे वो मूर्ति बनाता है, तो देखिए मैंने हमेशा सोचा है कि शुरुआत तो एक पत्थर था ना, उस मूर्तिकार ने उस पत्थर में ये मूर्ति की परिकल्पना करी और उसके बाद उसने धीरे 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 चीनी हथौड़ी से सालों मेहनत करी, तब मुझे और आपको वो प्रतिमा, वो मूर्ति, वो आइडल नजर आता है जो उस मूर्तिकार ने पहले ही देखा था। दैट इज पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। तो चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो साइंटिफिक डिस्कवरर हो, यही ह्यूमन माइंड है। तो आप समझिए कि इस ह्यूमन माइंड को हम कितना और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट, नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये बिल्कुल हमारे में लगातार नेगेटिविटी डिसाइड करेगा। कॉन्फ्रंटिंग माई फियर्स, क्या हम अपने डर को जीत कर सकते हैं? और डर के आगे ही जीत है। कैसे? देखिए, ये जो मैंने चित्र रखा है, माइंड में आपके ऐसे छोटी छोटी कोठरीज होती हैं। आपका ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है, ये कैसा है? ये भी तो बिल्कुल आपके माइंड का ही रेप्लिका है। इसीलिए आप देखिए, आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में छोटे छोटे फोल्डर्स बनाते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट और अपने लेसन प्लान सेव करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे स्क्वायर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, माइंड हर चीज को ऐसे ही एक प्रोग्राम बना के स्टोर कर। पैंडेमिक में क्या हुआ है, हमारे बहुत से पुराने प्रोग्राम काम नहीं कर रहे। अब आप क्लास में जैसे पढ़ाते थे, पीछे मुड़ के देखते थे और सारे बच्चे शांत हो जाते थे। अब डिजिटल लर्निंग में हम ये कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। बच्चों को भी पता है कि अच्छा, ये तो बहुत दूर है, ये हमें पकड़ नहीं सकते। तो क्या हो रहा है, हमारे अंदर हेल्पलेसनेस आ रही है। तो हमें करना क्या है, हमें नए प्रोग्राम बनाने। अब देखिए, आपके साथ जुड़ने के लिए मैंने ये जो पीपीटी बनाया है, जो मैं आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ, ये मुझे भी अडेप्ट करना पड़ा। मैंने लगातार सोचा कि जब मैं 20-20 दिन हर महीने ट्रैवल करके देश के हर भाग में जाके लोगों से मिलती थी, आप टीचर्स के आई कांटेक्ट, आपके सवाल मुझे मोटिवेशन देते थे। अब हमने अडेप्ट किया। तो यही है डीलिंग विद पैंडेमिक, बिकमिंग स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ एजुकेटर्स, मेकिंग प्रोएक्टिव चॉइसेस। अपनी लाइफ में थोड़े प्रोएक्टिव चॉइस, हेल्दी फूड, प्राणायाम, breathing exercises, a little bit of physical fitness, taking my children along with me. मैं आपको दिखा सकती, अगर थोड़ा समय होता, कि किस तरह से आज टीचर्स जो हैं सवेरे अपनी क्लास शुरू करते हैं, भ्रामरी करते हैं 2 मिनट बच्चों के साथ। कुछ टीचर्स पीरियड में पढ़ाने के 15 मिनट बाद, कि अब आप लोग सब स्क्रीन पे सुन रहे थे, चलिए सब लोग खड़े हो जाइए और मेरे साथ सब लोग चलिए 2 मिनट के लिए हमने सूक्ष्म व्यायाम किया, अपनी आंखों को रब किया और दबाया और बोला कि कम ऑन, गिव योर आईज रेस्ट, बट वी हैव टू कीप सीइंग द डिजिटल स्क्रीन। छोटी छोटी ये प्रोएक्टिव चॉइसेस जीवन में वापस ऊर्जा भरती है। क्रिएटिंग न्यू पैटर्न्स इन माई माइंड, हम ये तभी कर पाएंगे जब हम सबसे पहले अपने लिए न्यू पैटर्न बनाएं। देखिए, इस चित्र में हमने अपने हाथ पे माइंड को रखा है और देखा कि इसमें तो बहुत प्रोग्राम फिट है और इसमें बहुत जगह है, मैं नए प्रोग्राम डाल सकती हूँ। फिर हमने क्या किया, हमने एक लाल रंग का नया प्रोग्राम बनाया और उस डिब्बे को अंदर डाला। इसी को कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो आप सब बहुत ही काबिल, बहुत ही टैलेंटेड टीचर्स हैं। मैं जितना भी ग्रुप पे शेयरिंग्स देख रही हूँ, ये हमारा इसी महीने चौथा प्रोग्राम है। लगातार वीक आफ्टर वीक ई लर्निंग प्रोग्राम्स जो हम कर रहे हैं, हम आपसे जुड़ रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप सब आज से लर्न्ड ऑप्टिमिज्म में आए। लर्न्ड ऑप्टिमिज्म क्या है? ये नहीं है कि हम चीजों से भाग रहे हैं, हमें पता है हमारे चारों तरफ एक वायरस है, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम उम्मीद का साथ नहीं छोड़ेंगे। दैट इज लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। लिमिट मीडिया, अपने घरों में जो आप ये लगातार मीडिया से देख रहे हैं चीजों को, मैं कहूंगी सिर्फ लिमिट करें। क्योंकि देखिए, आज जो बिना किसी के फीलिंग्स को हर्ट पहुंचाए हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगी आपके सामने, कि ये जो लगातार हमारे यहाँ 100 से ज्यादा चैनल हैं,
टीआरपी बढ़ाने के लिए आज न्यूज में बहुत कुछ वो दिखाया जाता है जो ना तो नॉलेज है ना तो सच है। अपने घरों में कोशिश करिए, दिन में 2 टाइम डिसाइड कर लीजिए कि मैं इस 2 समय न्यूज देखूं। वही न्यूज 85 बार अलग अलग तरह से सुनने से हमारी नॉलेज नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर वही चित्र, वही चीजें जो परेशानी की है, हेल्पलेसनेस की है, वो हम बार बार अपने घर में देखते हैं, तो वो हमारे घरों में, हमारे कार्यस्थल में नेगेटिव एनर्जी को प्रसारित करते हैं। नॉइज और म्यूजिक में यही अंतर है। आज आप जब ट्रेनिंग्स में हिंदुस्तानी म्यूजिक देखेंगे और आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी संस्कृति में साउंड एनर्जी का कितना इस्तेमाल है। चाहे वो घंटी हो या आजान हो, चाहे वो चर्च का बेल हो, चाहे वो आरती हो, हर रिलीजन में साउंड एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है इंसान के मस्तिष्क को बैलेंस देने के लिए, शांति देने के लिए। इसीलिए मीडिया का ये जो शोर है, जो टेलीविजन और स्क्रीन से हमारे घरों में आ रहा है, थोड़ा सा इसको लिमिट कर, नहीं तो इसका बहुत नेगेटिव असर है। एंड दैट इज व्हाई, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, लेट अस ऑल कम टुगेदर। नेक्स्ट स्लाइड, डीलिंग इज दिस। इंसान को गो बैक, रंजन सर गो बैक, we need only one enter, yeah, माइंड एंड बॉडी कनेक्ट ही हमारा कंप्लीट सेल्फ है और इसकी शिक्षा टीचर्स को बच्चों को देनी है। आज जिस तरह से लाइफ का पेस बढ़ गया है, स्ट्रेस सबसे बड़ा किलर हो गया, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो। आप देखिए, आज आपका डॉक्टर यही कहता है कि ये बीमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आप अपने खान पान पे, व्यायाम पे थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए, तभी आपके शरीर पे असर होगा। बहुत सारी स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि चाहे वो किडनी में स्टोन हो, चाहे कैंसर हो, ये सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है। पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, people who have a lot of negative bitterness, hurt and anger, they will have more diseases which are related to stone, cyst and cancer. That is why wellness is important for teachers. और इसीलिए देखिए, ये जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, ये हमारे सर के ऊपर वाले भाग में छोटा सा ही है, लेकिन ये हमारे पूरे शरीर को घेर के रखता है। आप ये चित्र में देख पा रहे हैं, जो भी चाहे इस चित्र को खींच सकते हैं, रखिए इसको अपने साथ, क्योंकि ये चित्र आपको समझा पाता है कि एक्चुअली हमारा शरीर किस तरह से माइंड से अफेक्टेड है। और वो कैसे है, देखिए, हमारा एक शरीर तो वो है जो हमें शीशे में नजर आता है, उसको हम बड़ा सजाते संवारते भी हैं, अच्छी बात, लेकिन जो हमारा एक और शरीर है वो बिल्कुल पैरेलली इसी शरीर के साथ चलता है, और वो क्या है, ये लोनली, एंग्री, अफ्रेड, वरीड, कंफ्यूज। वो लगातार जीवन की जो ये परिस्थिति है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, किसी भी चीज को देख के बड़ा जल्दी विचलित होता है, और वो विचलित होके क्या करता है, कभी एंग्री हो जाता है, कभी डर जाता है, कभी वरीड हो जाता है, कभी कंफ्यूज होता है। और हमें जैसे ही हमारे अंदर का ये मौसम बदलता है, हमारा बिहेवियर बदल जाता है। हम सोच के तो यही उठे थे कि चलो अब ये बच्चा बेचारा घर तो में ही है, स्कूल तो जा नहीं रहा है, आज मैं उसको ये सिखाऊंगी। बच्चे ने कोई चीज उठा के फेंक दी, टूट गई, तुरंत हमारा माहौल बदल गया, हमारे को गुस्सा आ गया और हमने उसको डांटा। डांटने के बाद फिर क्या होता है, कहानी वहां खत्म नहीं होती, फिर थोड़ी देर में हमें अफसोस होता है, फिर हम जाते हैं बच्चे को मनाने, अच्छा तुम क्या खाओगे। तो ये देखो, ये जो पूरी दिनचर्या हम एज टीचर्स अपने परिवार के साथ भी हैं, आप सोच के देखिए तो आपको ये सर्कल नजर आएगा कि एक्चुअली मेरा फिजिकल हेल्थ, मेरा मेंटल थॉट्स और जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं, ये तीनों लगातार मिलके ही मेरी वेल बीइंग बनाते हैं। और यही क्लासरूम तक मुझे ले जाना है, यही मुझे बच्चों को सिखाना है। अगर आज 8 साल, 10 साल, 15 साल, 17 साल से बच्चे इसको समझेंगे, अपने इमोशंस को चैनलाइज करके पॉजिटिव ले जा पाएंगे, तो आप देखिए हम हर मुश्किल परिस्थिति से बाउंस बैक करेंगे, हम वापस जीवन में आएंगे। और इसीलिए इंसान को कहा गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम तो वो स्पीशीज है जो हजारों हजारों साल में आइस एज से आज सरवाइव करके मनुष्य को इस धरती का और
इस पूरे प्राणी जगत का बेस्ट स्पीशी माना गया है। क्यों? क्योंकि हम ही ऐसे हैं जो समझ सकते हैं, सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। एनिमल्स में देखिए, मैमल्स में खास तौर से बेसिक इमोशंस हैं। अगर आपके घर में कोई पेट है तो आपको दिखेगा कि वो कैसे समझता है, कैसे आपकी बात भी समझ लेता है और उसके इमोशंस। तो इंसान का इमोशनल वेलबीइंग बहुत जरूरी है और हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहता है कि किस तरह से टीचर्स को बच्चों के मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल, जो कि सोशल बिहेवियर में आता है, चारों की ही ध्यान रखें। आपका शरीर को माइंड किस तरह से कंट्रोल में ला पाता है? व्हेन वी यूज अटेंडिंग, ब्रीदिंग, लिसनिंग, ऑब्जर्विंग, नोटिसिंग, ग्रीट, पॉज। ये कैसे होता है? बिकॉज आप देखिए, योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, रीकी है, आर्ट ऑफ लिविंग है, ब्रह्म कुमारीज है, हमारे बाबा रामदेव है, आस्था चैनल है। कोई भी संस्था में आप देखिए, हम सब यही बात कर रहे हैं। ये सब एक ही मंजिल तक जाने के रास्ते हैं, आपके माइंड को वेलबींग रखने का। और ये हम अगर करेंगे तभी हम आज इस मुश्किल दौर में अपने दायित्व को पूरा कर पाएंगे। सो टीचर्स, छोटी छोटी चीजें, इसीलिए जब आप म्यूजिक पे, डांस पे, पेंटिंग पे, ड्रामा पे, थिएटर पे, जब हमारे इतने एमिनेंट स्कॉलर्स को सुनिएगा अगले 5 दिन में, तो आप महसूस करिए कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जो मैं रोज यूज कर सकता हूँ। क्या मैं ये चैंटिंग सुन सकता हूँ? क्या ये म्यूजिक मुझे रिलैक्स कर सकता है? क्या ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब मुझे एंजाइटी हो तो मैं सीख सकती हूँ? मैं इसको अपने बच्चों तक ले जा सकती हूँ। जब बच्चे रेस्टलेस हैं तो वो भी अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते? सिर्फ ये कहना कीप क्वाइट, लिसन टू मी, क्या हम इनसे चेंज हो सकते हैं? क्या मैं क्लास में ये दिखा सकती हूँ कि डिजिटल लर्निंग में बच्चों को सबको वीडियो स्क्रीन ओपन रखना है? और कैसे रखना है? क्योंकि अब जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मैम बोलेगी नहीं, मैम आपको इशारे से समझाएगी। ओपन द बुक, open your fingers, close them, open it, close them, open it, close them। चलिए, सारे लोग वीडियो विंडो जिन्होंने खोली हुई है, बहुत से लोग मुझे नजर आ रहे हैं, हम करीब 200 लोग जुड़े हैं। चलिए, सारे लोग ये छोटा सा सूक्ष्म मेरे साथ करिए। रब योर हैंड्स एवरीवन, कम ऑन, रब योर हैंड्स और 5 बार ताली बजाइए। देखिए कितना सारा आपको एनर्जी लगेगी। कम ऑन एवरीवन, यस, and then rub it again, take a deep breath, जोर से सांस लीजिए और अपनी आंखों पे इसको, हथेली को दबाइए। दबाते हुए सांस छोड़िए और 10 तक गिनिए। प्रेस इट, रिलैक्स, slowly open your eyes and see, do my eyes feel a little refreshed? All of us can do these simple things with children in our digital classes. Next slide, please, Ranjan sir. Ranjan, next slide. इस पूरे पैंडेमिक में मैं ये जो बात कर रही हूँ, आप इन डिजिटल ट्रेनिंग्स के बाद वापस अपनी क्लासरूम्स में यहाँ से चीजों को ले जा सकें और उनका इस्तेमाल कर सकें, यही हमारी पूरी कोशिश है। और इसको करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? समझना कि ये एडोलेसेंट जो है, जो ये बच्चे हैं हमारे क्लासेस में, इनके लिए ये पैंडेमिक और ज्यादा नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि एडोलेसेंट ये जो समय है 10 साल से 21 साल का, इस समय बच्चों को बहुत जरूरत होती है सोशल कांटेक्ट की, लोगों से मिलने की, अपने को आंकने की, क्योंकि ये आइडेंटिटी डेवलपमेंट स्टेज है। इस समय आप देखेंगे कि बच्चे पैंडेमिक में बहुत ज्यादा
मूडी हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज होने लगे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। बहुत से बच्चों ने अपने को कमरे में बंद कर लिया है, मैं, मेरा लैपटॉप, मेरा फोन, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये रियलिटी नहीं है। टीन गैजेट एंड सोशल मीडिया अटेंशन, आप लोग भी ये देख रहे हैं कि आपके घरों के आसपास भी छोटे से छोटा बच्चा दिन भर बस मोबाइल में है, मोबाइल ही उसको चाहिए, खाना भी खाएगा तो मोबाइल चाहिए, है या नहीं ऐसा? और ये जो है एजुकेशन के लिए नहीं हो रहा है, इसमें बहुत कुछ जो है वो इंटरटेनमेंट है। लगातार टिकटॉक वीडियो देखते रहना। आपको लगता है कि टिकटॉक वीडियो देखने से बच्चे की भाषा का विकास होगा? या बहुत सारी मीडिया बिल्कुल ऐसा है, सोशल मीडिया, और ये बहुत सारी अच्छी चीजें अवेलेबल है। आज आप बैठे बैठे अपने घरों से किसी भी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं, बच्चे किसी भी इंसाइक्लोपीडिया को पढ़ सकते हैं, बच्चे अपनी भाषा इंप्रूव कर सकते हैं, अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, तमिल बोलना सीख सकते हैं, बच्चे म्यूजिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन बच्चे इन चीजों की जगह बहुत से चीप वर्जन जो कि इजीली अवेलेबल है उसमें लिख, और मुझे यही आपसे कहना है कि इन 5 दिनों की ट्रेनिंग में आप इतने रिसोर्सेस CCRT से लेके जाइए कि आप बच्चों का मार्गदर्शन कर सकें और उनको ऑल्टरनेटिव दे सकें कि वो इन गलत चीजों की जगह आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए करें। और जब उन्हें इंटरटेनमेंट भी चाहिए तो वो ऐसी चीजों का चयन करें जो कि उनको एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रंजन, नेक्स्ट स्लाइड। CCRT का यही विजन है। कैन वी गो बैक? इट इज अ फर्म बिलीफ, मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ कपिला वात्स्यायन जी को, जिन लोगों ने इस संस्था की स्थापना करी। इट इज अ फर्म बिलीफ that unless there is equity between the creativity of the hand, the intellectual mind and the pulsating heart, a total human being would not be possible. जब तक कि हाथ का हुनर, दिमाग की सोच और दिल, इमोशंस, ये तीनों नहीं जुड़ते हैं, तब तक हम एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की रचना नहीं कर सकते। और देखिए, इसीलिए CCRT ने ये जो ट्रेनिंग आपके लिए रखी है, टुडे एट द इनॉग्रल डे वी आर ट्राइंग टू शेयर दिस विजन विथ ईच वन ऑफ यू टीचर्स, द ग्रेट विजन ऑफ पीपल हु अंडरस्टूड लाइफ and they created these institutions to bring in that values and skills for life. Next. Ranjay sir, next. Cultural component in education. किस तरह से हम कल्चरल कंपोनेंट को एजुकेशन में लाएं, एजुकेटर्स को एम्पावर करें कि जब वो बच्चों की आइडेंटिटी बना रहे हैं तो उनकी अपनी आइडेंटिटी में भी कल्चर, और इसीलिए डिजिटल लर्निंग इनिशिएट हुई। ये आप देख सकते हैं CCRT का डिजिटल लैब, जहां से आज का ये पूरा प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। आपको भाषा का ज्ञान दिया जाएगा, भारत की हर रीजनल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है, उसकी अपनी संस्कृति है, उसका कल्चर है, हम उसको आप तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट। Ranjay sir, we need to be very alert, please. Teachers as facilitators of cultural heritage. Cultural heritage is an expression of the ways of living developed by a community and passed down from generation to generation. Culture क्या है? Culture क्या हम किसी एक विधा से बता सकते हैं? Culture ही हमें इंसान बनाता है, Culture ही हमें डिफरेंशिएट करता है कि हम बाकी लिविंग बीइंग्स जो सिर्फ खाने, सोने और अपनी दिनचर्या इसी में बिताते हैं, इंसान ही वो एक परिपक्व स्पीशीज है जो कल्चरल एस्पेक्ट्स को
अपने जीवन में लाता है। तो ये जो कल्चर है ये टेंजिबल भी है और इनटेंजिबल भी। हमारी कहानियां, हमारे स्क्रिप्चर्स, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, आर्ट, इन सब में आप देखिए जीवन को बेहतर जीने की ही तो शिक्षा है और उसी को बच्चों तक, अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा दायित्व है, पेरेंट्स की तरह भी और एजुकेटर्स की तरह भी। So cultural heritage is an expression of the ways of living developed by a community and passed on from generation to generation. Customs, practices, places, objects, artistic expressions and values. So whether it is a Bihu dance or whether it is a Tulsi Vivah happening in any part of our country, अगर आप देखिए तो ये customs क्या दिखाते थे? Living in harmony with nature, celebrating all our festivals somewhere are related to weather, about the seasons, about harvesting, because what is harvesting? आपने बीज बोए थे और आज फसल उड़ी, तो वो लोहड़ी के गाने हो जो हम पंजाब से सुनते हैं या वो बिहू की मधुर स्वर हो, ये सेलिब्रेशन क्या है? सेलिब्रेटिंग द अबंडेंस ऑफ नेचर इन आवर लाइफ। और आज देखिए, आज अगर हम पैंडेमिक में हैं तो शायद कहीं ना कहीं हम सब ने तो ये सोचा जरूर कि इस जिंदगी में भागते दौड़ते कंक्रीट जंगल्स बनाते हुए शायद हम अपनी प्रकृति का अपमान कर रहे थे और इसीलिए प्रकृति ने एक बहुत बड़ा झटका दिया। लेकिन हमारे एंशिएंट कल्चर में हमेशा प्रकृति को एक पूजा का स्थान दिया गया। पूजा मतलब क्या है? घंटी बजाना नहीं है। पूजा इज treating something with utmost value. It is sacred, and that is why we have the ancient customs of praying to stones, because stone is longevity. Praying to a banyan tree, praying to a peepal tree. Why peepal tree? Because peepal tree gives maximum oxygen back in the environment. Why banyan tree? Because banyan tree propagates and becomes longevity and huge canopy of shelter to people. Why Tulsi? Because it has the immunity booster. आज हम सब immunity booster में तुलसी का काढ़ा पी रहे हैं, लेकिन पहले देखिए हमारे हर घर में घुसते ही तुलसी का पौधा होता था, which actually was symbol of Ayurveda, the ancient science of wellness of body and mind with nature, and that is what is culture. हमें इसके बारे में जब नॉलेज होएगी तो मुझे खुद जितना भी मैं सुनती हूँ और इन 5 दिनों में भी यथासंभव मैं आपके साथ हर सेशन में जुड़ी रहूंगी, डॉक्टर संदीप जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये लर्निंग इट इज एब्सोल्युटली इनफाइनाइट, ये लगातार चलती रहेगी और हम इससे जुड़ते रहेंगे। यही तो कल्चर है। कल्चर बहता रहता है, कल्चर एक प्रवाह है, ये रुकी हुई चीज नहीं है। कल्चर हमें अतीत से जोड़ता है और वर्तमान में जाने के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट, इन डिजिटल क्लासेस में हमें कल्चर, अपने देश के लिए प्राइड, एथिक्स, जिन चीजों की हमें बुनियादी तौर पे अपने जीवन को दिशा देने की जरूरत है, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, वही एथिक्स है। ये सही है या ये गलत है, सत्यमेव जयते, ये एथिक्स है। अंत में सत्य की ही जीत होती है। झूठ जितनी जोर से भी बोल ले, रहता तो खोखला ही है। वैल्यूज फॉर लाइफ एंड ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में आप किस तरह से इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करें, ये आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सोचना है। और आखिरी दिन हम जब वैलिडेटरी में आपसे पुनः मिलेंगे तो हम देखना चाहेंगे कि आपने इनमें से किन चीजों को किस रूप में अपने क्लासरूम में जाने की तैयारी की। नेक्स्ट, तो लगातार इन ट्रेनिंग्स में जुड़े रहिए, पेंसिल साथ में रखिए, क्योंकि पेंसिल से लिखी चीजों को हम याद रखते हैं और कभी कभी चेंज भी कर सकते हैं। सेल्फ एस्टीम, किस तरह से एक टीचर अपना हौसला बढ़ाए और अपने व्यक्तित्व में वो गरिमा लाए कि बच्चा आपसे जुड़ने की कोशिश करे। क्योंकि हम स्कूलों में किताबों से सिर्फ नहीं पढ़ते थे, हम अपने टीचर्स के हाव भाव से भी पढ़ते थे।
आर्ट इंटीग्रेशन, किस तरह से आप अगर देख सकिए कि मैं फिजिक्स पढ़ाते हुए भी आर्ट को अंदर ला सकता हूँ। आज देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें यही कह रही है ना कि फिजिक्स और म्यूजिक बच्चा दोनों पढ़ सकता है साथ में। तो सोच के देखिए, फिजिक्स क्या है? साउंड एनर्जी, साउंड एंड लाइट, हम फिजिक्स में ही तो पढ़ते हैं। और म्यूजिक कैसे बनता है? साउंड से ही बनता है। तो फिर ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? ये तो जुड़े हुए हैं। आप हमारे एंशिएंट ट्रेडिशंस में देखिए, कल्चर में, जो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है वही सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स का मूवमेंट इज ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन. That is why a teacher has to have that large understanding. आपके दिमाग में वो विश्व गुरु होना चाहिए, और विश्व गुरु वो है जो किसी एक किताब, किसी एक सिलेबस को नहीं पढ़ाता. वो सिलेबस को पढ़ाने के साथ साथ बच्चे को एक पूरे विश्व की व्यापकता, the universality of this world and universe is transmitted by a teacher, by his and her examples, and the teacher is able to give this deep insight, a sense of value, जहां बच्चे को याद रहे. आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं अपने टीचर्स की वजह से हूं, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मेरे अंदर क्षमता को देखा और मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम ये कर सकते. Effective communication for educators is important. आज आप जितने भी वक्ताओं को सुनेंगे, आप देखिएगा, आपको खुद समझ आएगा कि हमें ये क्लास इसलिए बहुत अच्छी लगी मैम, क्योंकि बोलने वाले का तरीका ऐसा था कि उनकी बात हमारे दिल तक पहुंची और बिल्कुल मन में उतर गई. So that is effective communication. It is not only language, it is conviction, it is clarity, it is connect, which makes you a great communicator. Teachers have to be great communicators. कॉमन क्लासरूम सिचुएशंस में आप किस तरह से इन चीजों को करेंगे, यही सीसीआरटी का पूरा ऑब्जेक्टिव है इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. एक्टिव एंड रिएक्टिव रिस्पॉन्सेज. एक्टिव तो हमें रहना है, लेकिन रिएक्टिव नहीं रहना है. रिएक्टिव की जगह हमें क्या बनना है? प्रोएक्टिव, सकारात्मक और सक्रिय. एंड दैट इज व्हाई let us all come together on this platform for new learning. न्यू नॉर्मल का फायदा हम तभी ला सकते हैं जब हम न्यू लर्निंग के लिए रेडी, और जब हम न्यू लर्निंग के लिए रेडी हैं, अपने माइंड में न्यू प्रोग्राम्स बनाने के लिए रेडी हैं, अपने को ट्रेन करने के लिए रेडी हैं, तब हम बैक नहीं जाएंगे. हम अपनी पुरानी धरोहर को, कल्चरल हेरिटेज का निचोड़ लेके आगे जाए. नेक्स्ट, दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग कल्चरल कंपोनेंट. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इंटीग्रेशन में ये सब्जेक्ट्स एंड स्किल्स की बात की है कि अपने विषयों को पढ़ाते हुए क्या आप इन स्किल्स को उनके साथ जोड़ सकते हैं. आप देखिए, साइंटिफिक टेम्पर, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, oral and written communication, physical education, wellness and sports, knowledge of India, digital literacy. ये जो 10 में से 5 चीजें मैंने पढ़ी, इन पांचों के लिए आपको अगले 5 दिन में हम बहुत सारा रिसोर्सेज और बहुत सारे तरीके देंगे. मेरे साथ और बहुत एमिनेंट रिसोर्स पर्सन, जैसा कि पुजारी जी कह रहे थे, आपसे रूबरू होंगे, आपके समक्ष आएंगे, एंड दे विल ईच प्रेजेंट एन एब्सोल्युटली न्यू एरिया ऑफ नॉलेज, लर्निंग एंड प्राइड. कि अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं था. मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि अरे ये तो मुझे पता नहीं था. सो कोशिश करिए कि आप इस ट्रेनिंग्स में इन चीजों को अपने साथ ले जा सकते हैं. आर्ट एंड एस्थेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन. ये ना सोचे कि मैम ये स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स टीचर का काम, मैडम ये आर्ट तो आर्ट टीचर पढ़ाता है, मैडम हम तो मैथ्स पढ़ाते हैं. क्या मैं मैथ्स में भी किसी बच्चे को प्रेरित कर सकता हूँ कि चलो तुम ये चीज का चित्र बनाओ और देखो, क्योंकि ज्योमेट्री तो चित्र ही है. और अगर आज मैं सन टेम्पल देख के इंस्पायर हूँ कि वाह, तो सन टेम्पल से ज्यादा साइंस कहाँ है?
सोचिए, इतने हजारों वर्ष पहले ना ट्रैक्टर था, ना क्रेन था, ना बैरोमीटर था, ना हमारे इतने सारे कंस्ट्रक्शन टूल्स थे। वो क्या चीज थी कि उन्होंने पृथ्वी के एक भाग में ऐसी रचना की कि आज भी सूरज की किरणें पड़ने से आप सन डायल पे सही टाइम बता सकते। तो कितनी प्रिसाइज ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स उनको आती थी, केमिस्ट्री आती थी कि उन्होंने इन चट्टानों के ऊपर क्या केमिकल लगाया कि आज इतने सालों की बारिश और धूप के बाद भी वो खड़ा है पत्थर। तो सन टेम्पल एक ऐसा मॉन्यूमेंट है उड़ीसा के हमारे प्रांत में जहां पे आप ये करिश्मा देख सकते। और ऐसा ही भारत के हर भाग में। तो कितना अच्छा हो कि टीचर ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाए, डांस भी पढ़ाए, क्योंकि सन टेम्पल में तो डांस के भी पोस्चर्स है, उससे फिजिकल फिटनेस को कनेक्ट करे और फिर बच्चा फिजिक्स का एक आंसर लिख सके। तब हम कल्चरल इंटीग्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन इन एजुकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज, जरूर से इन चीजों को उतारिए। आई होप टीचर्स आर मेकिंग नोट्स हियर। मैंने जब बच्चों से बात करी, इधर करीब 10,000 बच्चों से हमने ये फॉर्म भरवाया और आपको जान के बहुत खुशी होगी। स्ट्रक्चर, रूटीन एंड डिसिप्लिन। हमें ज्यादातर लगता है ना कि बच्चे तो स्कूल में मैम डिसिप्लिन से परेशान होते हैं, लेकिन बच्चों ने क्या बताया जब उनसे ये सवाल पूछा गया, व्हाट स्कूल मीन्स टू यू, आपके लिए आपका स्कूल क्या मायने रखता है। तो आप जानते हैं बच्चों ने क्या बोला? उन्होंने कहा मैम जब स्कूल जा रहे थे तो हमारी दिनचर्या में एक स्ट्रक्चर था, सवेरे उठने का समय था, पढ़ने का समय था, स्कूल से लौटने का समय था, सोने का समय था, जागने का समय था। अभी तो मैडम स्कूल नहीं है तो स्ट्रक्चर ही नहीं, रूटीन नहीं, और मैडम एक डिसिप्लिन नहीं। बच्चों ने कहा देखिए, और ये बड़ी ही भावनात्मक थी। आपको आश्चर्य होगा जान के कि बहुत बच्चों ने इसके मिलते जुलते एक्सप्रेशन हमें दिए। अ प्लेस वेयर आई वॉज माई सेल्फ। स्कूल वो जगह है जहां मैं अपने आप को पूर्ण महसूस करता हूँ। स्कूल जाके मुझे सिर्फ खुशी नहीं मिलती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे हाँ मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ व्यक्तित्व है। मैडम स्कूल नहीं जाने से तो ऐसा लगता है, कितने टीचर्स को ऐसा लगता है कि मैडम हमारा जो स्कूल है, जो हमारा कार्य है, वो तो हमें जीवन में हर पल एक एहसास देता है कि हाँ मैं कुछ इम्पोर्टेंट हूँ। बताइए मुझे कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैम ये बच्चों के ही साथ नहीं हमारे साथ भी सही है। वाह, थैंक यू जयप्रकाश जी, अंजू जी, कितने सारे लोग हैं। बालाजी, आप सबके हाथ ऊपर जाते हुए देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। शिवानी जी, भुवेश, श्रीधर नायक सर, किरणदीप कौर मैम, अनुपमा पांडे मैम, जाकिर सर, बहुत बढ़िया। और यहीं से आप समझेंगे कि स्कूल सिर्फ पास करके एक सर्टिफिकेट लेने का नाम नहीं है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे जीवन का एक आधार बन जाता है। थैंक यू रमेश सर, थैंक यू उमा मैम, माधव पटेल सर, बहुत बढ़िया। हम सब जुड़ रहे हैं, आप सब मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय। और आज सीसीआरटी के इस प्लेटफॉर्म से अपने चेयरपर्सन, डायरेक्टर सर, डिप्टी डायरेक्टर, सबकी तरफ से हमारे कंसल्टेंट, हम सब आप तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि एक नई ऊर्जा का संचार लाइए। इन सारे पैंडेमिक और अनसर्टेनिटी के बावजूद भी स्कूल्स आज भी हमारी सामाजिक पूरी जो व्यवस्था है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू नमिता जी, निर्मल मैम, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। बच्चों ने ये भी कहा, इन स्कूल आई वॉज फिटर। जब मैं स्कूल जा रहा था तो मेरे को ज्यादा एनर्जी थी, मैं ज्यादा फिट था। आप जानते हैं एक नॉर्मल स्कूल में एक 12-14 साल का बच्चा दिन भर में स्कूल अगर जाता है, असेंबली जाता है, क्लासरूम में आता है, ऊपर जाता है, लैब में जाता है, तो दिन भर में 6 से 7,000 कदम चल ले। 7,000 कदम चलने के लिए आपको 1 घंटे से ज्यादा वॉकिंग चाहिए। और आज पैंडेमिक में क्या बच्चे ये कर पा रहे हैं? हमें से कितने बड़े लोग हैं जो लोग बहुत लथार्जिक हो गए। तो
दावे सर, आप सब लोगों को ये मैसेज वापस पहुंचाना है बच्चों तक। बच्चों ने ये भी कहा कि मैम जब स्कूल था तो आई वॉज एंगेज्ड, मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे बहुत कुछ करना है। स्कूल ensured there was more gadget control. जब मैं स्कूल था तो इतना ज्यादा मोबाइल और इतना टीवी पे मेरा डिपेंडेंस नहीं था, मेरे को कोई एडिक्शन नहीं था, क्योंकि स्कूल जाना था, टीचर की बात सुननी थी, दोस्तों के साथ मस्ती करनी थी, खेलना था, फुटबॉल खेलना था, फिर लैब में जाना था। ये सारी जो सोशल एक्टिविटीज हमने सोशल डिस्टेंसिंग में बंद करी हैं, इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो टीचर्स कोशिश करिए कि सीसीआरटी के इस ई लर्निंग से आप ऐसे बहुत से टिप्स और टेक्निक्स ले जाइए जिससे आप डिजिटल लर्निंग के माध्यम से भी बच्चों को बहुत कुछ जो उनके लिए जरूरी है वो उन तक पहुंचा सके। और इनमें से बहुत सी चीजें हैं जो आप खुद भी कर सकते। आज ही मैं जितनी रेगुलरली योगा कर पा रही हूँ, उसने कहीं ना कहीं मेरे को बहुत स्थिरता, कामनेस और बैलेंस दिया। तो कोशिश करिए कि हम इनमें से कुछ चीजों को अपने जीवन में अपनाएं, छोटी छोटी चीज, सूक्ष्म, लेकिन ये छोटी चीजों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता है। नेक्स्ट, IQ, EQ, SQ, किसी भी इंसान की अफेक्टिवनेस कि वो किस तरह से अपने जीवन का यापन करे। एजुकेशन का तो मतलब यही था ना, विवेकानंद जी ने हमें यही कहा था। अ ग्रेट फिलोसोफर एंड थिंकर, बहुत ही उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिकता से परिचित कराया। उन्होंने विश्व में द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में लोगों को ये दिखाया कि एक शून्य का भी कितना मतलब है। और यही स्थिति है, आज हमें वही ईश्वरचंद विद्यासागर और विवेकानंद जैसे एजुकेटर्स चाहिए जो वापस विश्व में भारत की इस कल्चर, हेरिटेज, साइंटिफिक नॉलेज, आर्टिस्टिक एबिलिटीज को अपने बच्चों के माध्यम से विश्व में पहुंचा सके। और इसके लिए हमें बच्चों की IQ तो बढ़ानी ही है, पर IQ सिर्फ मेमोरी नहीं है, क्रिएटिविटी है। एक इंसान जो पेंटिंग बना सकता है उसकी IQ बहुत हाई है, क्योंकि एक सफेद कागज पे वो कुछ ऐसा देख सकता है जो मैं और आप लिखे बिना देख ही नहीं पाते। मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है, लेकिन मैं शायद उसको इतनी खूबसूरती से अपनी कलम से, एक ब्रश से पेपर पे नहीं ला सकती हूँ, मेरे में वो क्षमता नहीं। तो आज हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आपने पढ़ा है, हार्वर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी दी कि इंसान के दिमाग में जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ एक प्रकार की नहीं है, वो बहुत प्रकार की। और इसीलिए IQ, EQ, इमोशनल क्वेश्चन, अपनी भावनाओं को समझना, इंस्पिरेशन, प्रोत्साहन, ये सब क्या है? इमोशंस हैं। और ये इंसान को मिराकल्स की तरफ ले जाते हैं। बहुत सी चीजें जो आपको लगता है ये दिमाग कहता है ये नहीं हो सकता, लेकिन जब आपका इमोशनल सेल्फ कहता है कि नहीं मुझे ये करना है, ये मेरे पिताजी की इच्छा थी, मेरी टीचर को ये मेरे पर विश्वास था इसलिए मुझे करना है, तो आप देखिए यू गेट एब्सोल्युटली अमेजिंग एनर्जी। आपके अंदर इतना ज्यादा एनर्जी का सोर्स आता है। एंड देन व्हाट हैपेंस? सोशल क्वेश्चन, सामाजिक व्यवस्था में अपने को अडेप्ट करना, एडजस्ट करना। क्योंकि देखिए हमारा सुख, इंसान एक बड़ी अजूबी चीज है, हमारा दुख लोगों से है। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरा निरादर किया, वो मेरी बात सुनता नहीं है, हमें इससे दुख होता है। लेकिन फिर सुख हमें कहाँ से होता है? सुख भी तो हमें दूसरों से ही होता है। दोस्तों के साथ आधे घंटे बैठे, हमने खूब सारी बातें की, एक कप चाय पी, हम फ्रेश हो जाते हैं कि नहीं? SQ है सोशल क्वेश्चन। बच्चों को पढ़ाने के लिए इसीलिए सोशल ट्रेनिंग थी स्कूल्स। और स्कूल्स में आपने कभी देखा है आपकी जो क्लासरूम बनती हैं वो 4 दीवारें नहीं है। इस 4 दीवारों के बीच में जो ये 50 बच्चे बैठते हैं, ये 50 अलग घरों से आते हैं। They come from different families, different backgrounds, different religion, different communities, अलग अलग भाषाएं भी कई बार ये बोलते हैं। तो आपकी क्लास में ना किसी बच्चे की एबिलिटी बराबर है, ना उसकी क्षमता बराबर है, ना उनका एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट बराबर है। क्या बराबर है? उम्र।
सारे बच्चे जो एक क्लास में बैठते हैं मुख्यतः 6 से 7 महीने के अंतराल में ही उन सब की उम्र होती है। और इसीलिए साइकोलॉजिस्ट, मैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ, हर उम्र में बच्चा जिस जिस तरह से बढ़ता है उसके अंदर जो बदलाव आता है, किस तरह से टीचर और पेरेंट उस बदलाव के साथ बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे की इंटेलिजेंस, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट और बच्चे की सोशल ट्रेनिंग करे, यही स्कूल्स। और आज इसको करने के लिए क्या जरूरत है? रंजय सर प्लीज प्रेस एंटर। सिर्फ एंटर दबाइए तो आपके स्क्रीन पे आएगा CQ। और CQ क्या है टीचर्स? CQ इज चेंज क्वेश्चन। हम सबको अपने अंदर बदलाव लाना पड़े। ये लर्निंग और ट्रेनिंग का मतलब तभी है जब हम अपने में बदलाव ला सकें। रंजय सर प्लीज प्रेस एंटर। और उसी बदलाव के साथ हम एक और क्यू की तरफ बढ़ रहे हैं और वो क्यू है हैप्पीनेस क्वेश्चन। तो IQ, EQ, SQ के साथ CQ और HQ, ये 5 चीजें लिख लीजिए। आखिरी दिन हम जब फिर मिलेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से टीचर्स अपनी क्लासरूम में अपने शब्दों के जरिए से, एक वीडियो, एक चार्ट, एक प्रोजेक्ट के जरिए से चेंज ला सकते, क्योंकि आप सब चेंज एजेंट्स हैं। और इन चेंज के साथ आता है हैप्पीनेस क्वोशिएंट, वेल बी। जॉन लेनन एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, उनके शब्द यहाँ मैंने रखे हैं, आपके सामने पढ़ती हूँ। When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down happy. They told me I did not understand the assignment. And I told them they did not understand life. इस बात को अगर समझिए तो इन्होंने कहा क्या है कि अल्टीमेटली इंसान जीवन में कंटेंटमेंट चाहता है, और वो कंटेंटमेंट आता है सेटिस्फैक्शन से। जब आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो समाज के लिए कुछ डिफरेंस लाता है, तब हमें अपने जीवन में उस सुख का अनुभव होता है। एंड दैट इज व्हाई टीचर्स, लेट अस बिकम चेंज एजेंट्स, लेट अस मूव टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ मोर हैप्पी सोसाइटी बाय हेल्पिंग आवर चिल्ड्रन कि वो अपनी जमीन से जुड़े, और वो जमीन है उनके ट्रेडिशंस, उनका कल्चर, और उस कल्चर और ट्रेडिशंस को हम आज अपने जीवन में किस तरह से लाएं। नेक्स्ट रंजय सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये बहुत सुंदर सा चित्र है जो आप जैसे ही किसी पार्टिसिपेंट ने शेयर किया था, ये सत्यजीत रे के बनाया हुआ है। और आप देखिए, हम आर्ट, मॉन्यूमेंट्स, डांस फॉर्म्स, म्यूजिक, ट्रेडिशंस टू कोएग्जिस्ट विद नेचर, हार्मनी एंड पीस इन आवर कल्चर, इन सारी चीजों को अगले 5 दिन में थोड़े थोड़े रूप में आपसे परिचित कराएंगे। आपको बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सेस होगा, और मैं पूर्ण तरह से ये मानती हूँ कि यहाँ से आप एक नई शुरुआत कर पाए। आप अपने क्लासरूम्स को इंटरेस्टिंग ही नहीं, नॉलेजेबल ही नहीं, एक प्रेरणा स्थल बना पाएंगे जहाँ बच्चे अपनी जमीन से जुड़ पाए। That is why please keep sharing. Every part of our country has its own rich traditions, which are very, very geographically correct. They are very scientific, and they will create healthy, harmonious living of human beings. This education is education for life. Next slide, Ranjay. New dimensions for educators. Please go back. These are some of the suggestions which have been evolved. Can schools create a cultural calendar जिसमें आपकी मॉर्निंग असेंबलीज में आपका जो डेली का स्कूल का कार्यक्रम है उसमें हम कल्चर को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई एक्टिविटी करें? क्या हम कल्चरल क्लब्स क्रिएट कर सकते हैं
जिससे रीजनल जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनके बारे में बच्चों की अवेयरनेस बढ़े? कैन वी मेक चिल्ड्रन रिस्पेक्ट दीज आर्टिसंस, दीज मास्टर क्राफ्ट्समैन, दैट इनकी इंटेलिजेंस कितनी हाई है कि आज ये लकड़ी के ऊपर एक पूरा दृश्य इन्होंने गांव का बना दिया। तो सोचो, इसके लिए हाथ का हुनर, दिमाग की सोच, एक डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क चारों चाहिए। क्या हम अपने स्कूलों में लैंग्वेज लैब्स बना सकते हैं? क्या हम अपने डिजिटल क्लासेस में बच्चों को छोटे छोटे वीडियो और क्लिप्स दिखा सकते हैं? हेरिटेज एजुकेशन के क्या स्कूल में टीचर्स मिलके जो ब्लैक बोर्ड्स है उन्हीं के साथ में जो हमारा बुलेटिन बोर्ड्स है उसमें लगातार सारे साल बच्चों को किसी न किसी कल्चरल ट्रेडिशन की शिक्षा दे सकते हैं? क्या हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में बच्चों को ये एक्टिविटी करा सकते हैं कि वो कौन से 5 पेड़ हैं जो आपको आपके जीवन में सबसे ज्यादा लाभ देते? कैन वी मेक मेडिसिनल गार्डन्स? Can we teach children so many things which is social science, helping them to lead their life in harmony with nature? I do hope you will be able to find ideas for worksheets, case studies, group work, theater, talent show in your own schools, video demonstrations. आप अगर यहाँ से कुछ सीखते हैं और आप उसका एक छोटा सा वीडियो अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और अपनी क्लासरूम्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग, सभी का दिमाग एक्टिव होके कुछ सोच रहा है और हम कुछ नया सोच रहे हैं, ये जब हम करेंगे तो आप CQ हाई करेंगे, आप वो कल्चरल एजुकेटर्स हैं जो चेंज एजेंट्स बने। इसीलिए ये 5 दिन की ट्रेनिंग जितनी नए दरवाजे और नई खिड़कियां खोलेगी वो आपके हाथ में। हम आके दस्तक दे सकते हैं, वी कैन नॉक नॉक, लेकिन अगर आप वो खिड़कियां खोलेंगे नहीं तो फिर ये सूरज की किरणें अंदर जाएंगी। So are we all ready to open our minds to new learning and new possibilities? Next, please. Life skills and value education. स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, आपके डांस एंड ड्रामा के माध्यम से, आप देखिए चाहे वो भरतनाट्यम हो या कुचिपुड़ी हो, वो मणिपुरी डांस हो या वो हमारा गुजरात का गरबा हो, हर में आप देखिए देयर आर स्टोरीज and these stories teach you values. Storytelling is one of the most ancient art of transferring traditions, knowledge and culture. Today, in digital learning also, when children are changing channels, 10 channels in less than 5 seconds, we have to take them back to the traditions of storytelling. Mahabharata and Ramayana are also stories. So, can we use storytelling? Can we use small digital content of stories and videos to help to make children learn empathy, tolerance, human rights, non-violence, gender equality? किस तरह से हमारे एंशिएंट आध्यात्म में नर और नारी का समावेश शिव के रूप में दिखाया गया? ये सिंबोलिज्म है। और सिंबोलिज्म क्या था? ना नर नारी से ज्यादा बलवान है, ना नारी नर से कमजोर है। ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो आज हमें पाश्चात्य संस्कृति से जेंडर सेंसिटिविटी नहीं सीखनी, हमें ये अपने बच्चों को दिखाना है कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ये पैट्रियार्कल सोसाइटी बहुत बाद में आई, लेकिन हमारे यहाँ गांधारी हो या कुंती हो या हमारे यहाँ कात्यायनी है या हमारे यहाँ गार्गी है, great scholars were women. That means women were always getting education. They were given that freedom. So why have we gone into things which are misleading? Let us go back to this knowledge. विश्व बंधुत्व की भावना हमारे यहाँ कही गई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया. Global brotherhood, global peace, looking at everybody being in healthy and being in harmony. That is the tradition of our rich culture. And that is why these values have to be a part of our education. जातक कथाएं,
हम सब ने पढ़ा होगा, हम में से बहुतों ने अमर चित्र कथाएं पढ़ी होंगी. इट इज स्टिल अवेलेबल नाउ. इट इज, जातक कथाएं क्या थी, एक राजा ने एक टीचर को ही कहा था कि अगर आप मेरे इस बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो ये पढ़ता नहीं है, तो उसने कथाएं बनाई, एनिमल्स को यूज करके स्टोरीज बनाई, और हर स्टोरी में उन्होंने जीवन के किसी न किसी वैल्यूज को सिखाया. टीचर्स, can we use many of these resources to bring back energy, learning, education in its full form? That is what National Education Policy is again and again emphasizing for all of you. पर ये किसी कागज से हमारे क्लासेस तक नहीं पहुंचेगा. ये हमारे क्लासरूम्स में तभी पहुंचेगा जब आप एज टीचर्स इसको अपनाएंगे और इसको आगे ले जाएंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Ranjan sir, next. Let us make a new beginning. Remove negativity और हम सब एक साथ बोले I can do it. हम सब साथ साथ में कर सकते. Let us make a new beginning. You will be able to do everything that you want, but you will only be able to do it when you make up your mind, yes, I can. Thank you, Deepak sir. So many people are raising hands. 210 of us are here. Dr. Sandeep Sharma, our respected CCRT trained consultant at Guwahati, I would like all of you to join me now and open this platform of the inaugural day for interaction with teachers. I do hope that in this interaction, Dr. Sandeep Sharma, I have been able to bring to teachers a very, very nutshell of 5 days of objectives and making each one of you understand that what is our vision of teachers being facilitators of culture. Teachers वो गागर हैं जो इस कल्चर के विशाल सागर को भर के बच्चों तक ले जाए. So, thank you teachers for your attention, for being with us, and we all start a beautiful journey. So, Dr. Sandeep Sharma, I request you for your deliberation of few words to culminate the message of this morning inaugural session. Over to you, Dr. Sandeep. Thank you, ma'am. Every time we learn from your presentation, ma'am, and getting feedback, teachers, they feel overwhelmed and they get huge informations and learning from your presentations regarding given subject, and definitely they'll inculcate. Later on, they give us feedback also that they are inculcating in their school system through online mode itself. And I would, ma'am, whether question answer session has been done or not. नहीं sir, now we can take some questions. अगर teachers कुछ पूछना चाहते हैं, I am here to answer. Okay. Before presenting vote of thanks, we can have an interactive session and whole the day. Next session will be for the Manzil Hazarika, having discussion on heritage of our country, linking with education. And now we'll have interactive session. On behalf of CCRT, we welcome our all teacher participants to have interaction from all directions. हम आप लोगों के एक्टिव चेहरे देखना चाहते हैं, स्माइलिंग फेस. आप क्वेरीज करिए. ये इग्नाइटेड ब्रेन ऑलरेडी है मैम, और आपने तो बहुत इग्नाइट कर दिया है, मुझे मालूम है. तो कुछ क्वेश्चंस हम लेना स्टार्ट करें. मोस्ट वेलकम टीचर्स, यू मे रेज योर क्वेश्चंस और क्वेरीज. Yes, Saloni ma'am, I want to ask one question. Yes, बोलिए. आप श्वेता बोल रही हैं? Yes, I am Shweta Agrawal from Jaipur, Rajasthan. हाँ, बोलिए मैम, स्वागत है. I am a second grade teacher of mathematics, and I want to ask you one question. Then, how can I involve cultural components in mathematics teaching? Will you please help me?
Ma'am, when you are teaching algebra or trigonometry, whether you are teaching numbers, secondary classes may, when you will be able to, after tomorrow's session, you will get a detailed answer that how various Indian mathematicians, वैदिक मैथ्स अगर आज आप देखिए तो बहुत से फॉरेन कंट्रीज में कंपलसरी पढ़ाया जा रहा है. So basically, Shweta, you will teach your syllabus, but you will bring into integration that what were the ancient methods of calculation. Suppose you are teaching children one trigonometry principle, and now you have given them an equation. Can you tell them that just imagine that when they made a Qutub Minar or when they made the great Golconda Fort, or when they created a red fort, what were the principles which they must have used for calculation of these? So that is how a 5-minute of integration of culture will make children see that this maths formula does not just exist in isolation. It is being practiced in Indian traditions from thousands of years. Do write to me, Shweta. We will be able to give you many more examples for that. सलोनी मैम ने बहुत अच्छे से, श्वेता मैम, I'm in my teaching. Thank you so much, ma'am. श्वेता You मैम, are welcome, welcome, Shweta. सलोनी मैम, Yes, I Sandeep wish to, sir. Yes, I wish Sandeep to sir. add, yeah, I wish to add something, सलोनी मैम. हाँ सर, बिल्कुल. मैम ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया और आपको एक्सप्लेन कर दिया वैदिक मैथमेटिक्स का जो हेरिटेज है हमारा. अगर आप, श्वेता मैम, अगर हनुमान चालीसा आपने सुना है? Yes, sir. श्वेता मैम, आपने, हाँ, अगर आप, हाँ, तो आप क्या क्लास में बताते हैं, युग सहस्त्र योजन पर भानो, लिल्योता ही मधुर फल जानो, है ना? ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी का मेजरमेंट हमारे एंशिएंट लोगों के पास था. ये मैथमेटिक्स पढ़ाते समय क्या हम उसको एड्रेस करते हैं? क्या हम आर्यभट्ट को एड्रेस करते हैं? हम लोग पाइथागोरस को करते हैं, बाहर के साइंटिस्ट को करते हैं. यही हमको ट्रेनिंग हमारे ब्रिटिशर्स ने दिया, लेकिन अपने हेरिटेज को छोड़ के बाकी सभी करते हैं. कभी कभी हम स्कूल्स में पहुंचते हैं, श्वेता मैम, तो हमारे एचएम सर लोग कभी कभी कहते हैं, भाई ये एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम है आपका, संस्कृति का मामला, अभी क्लासेस चल रहा है, बाद में आना. अरे नहीं 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 नहीं, संस्कृति एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम नहीं है. एनईपी में इसको क्यूरिकुलम में लिया गया है, को क्यूरिकुलम भी नहीं है. क्यूरिकुलम में जब तक हमारे देश का मैटर आपके कंटेंट में नहीं आएगा तो फिर हम लोग को विचार करना है हम क्या पढ़ा रहे हैं. सो योर क्वेश्चन वाज वेरी जेन्युइन एंड द मैटर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स गिवन बाय मैम सलोनी प्रिया, excellent. Thank you ma'am. Next question. Thank you, Dr. Sandeep. Thank you, Saloni ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. It's a very wonderful session. I have noted the many of your quotations like IQ, EQ, and SQ, and try to be use these in my classroom activities. Thank you so much for your support, and thank you so much your content. Thank you, Pavan sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. कुमारी एकता जी, आप बोल रही थी, बोलिए. आसाम Yes, से. ma'am. आसाम में कहाँ से हैं मैम आप? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए. मैं आसाम तिनसुकिया से हूँ. मैं एमई स्कूल में करती हूँ एज ए साइंस टीचर. और मैम आज जो भी मैंने आपकी बातों को सुना, तो इसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, दैट वाज द नेगेटिविटी. अ टीचर शुड लीव ऑल द नेगेटिविटी एंड शुड proceed toward the positivity so that they can, if they are themselves positive towards their attitude and the environment, they can teach their students the best. तो ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले अपने आप को हमें पूरी तरह से पॉजिटिव वे में लाना होगा. हाँ, चाहे वो कन्विक्शन, कम्युनिकेशन, चाहे मेंटली जो हमारा मेंटल स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, उसके बाद ही हम वो बच्चों को सिखा पाएंगे. तो ये पार्ट मुझे सबसे बेस्ट लगा. जो Thanks for that, ma'am. Thank you so much, Ekta ji. This is our chairperson, ma'am's vision,
that we should all be mentally fit, physically healthy, and then we are a complete teacher who can inspire children. So thank you for sharing that. Thank you, ma'am. Thank you. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग सर. आप कहाँ से हैं सर? ओके, मैं गुजरात जूनागढ़ से हूँ मैम. आई एम फ्रॉम बहुत गुजरात. सुंदर. यस यस, फ्रॉम गिरनार जूनागढ़ सिटी. ओके संदीप सर, लास्ट टाइम जूनागढ़ से हमारे 2 फ्रेंड आए हुए थे. नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार सर. पुनः स्वागत है सर. ओके. एक्चुअली फ्रॉम टुडे सेशन कैसा लगा ट्रेनिंग बताइए. बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया. टीचर के बारे में और टीचर की जो आइडेंटिटी है उसके बारे में हमें जो आपने फिर से क्या बोलूं फील कराया कि व्हाट द रोल ऑफ अ टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड और पर्टिकुलरली इन वन सेल्फ, दैट इज वेरी हाई टचिंग. एंड वन मोर थिंग, अभी 2 साल से हम ये सीख रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंस पर आपने जो लाइट आउट किया कि सोशल डिस्टेंस से बजाय फिजिकल डिस्टेंस दैट इज ओके, पर सोशली हमें डिस्टेंस में नहीं रहना है, सोशली तो हमें अवेयर रहना है. वो बात मुझे तहे दिल से जच गई कि भाई प्रैक्टिकली फिजिकल डिस्टेंस रखिए, सोशली और इमोशनल डिस्टेंस मत रखिए. थैंक यू मैम. Thank you so much, ma'am. The session was really wonderful, highly motivative, and as you said, to inculcate the moral values among the student community through the good stories. There are periods like moral instructions in every school, but unfortunately, the teachers are under extreme pressure. Like every time they are focusing more on covering their syllabus to complete their syllabus, and so the moral instructions period is hardly given any importance. So I think it would be better the management or to make a statewide policy giving more importance to this fine arts and moral instructions period in order to inculcate the values among the student community. I strongly believe that, ma'am. That's just I wanted to convey that to you. Thank you so much. Yes, sir, and we will have to try many new things. Yes, ma'am. Moral science and value education periods को जो हमने free periods बना दिए हैं वो हमें change करना होगा sir. And exactly. 5-day training में CCRT से आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा with you will be empowered to go back and share with your children. Let us hope so. Exactly. Thank you so much, ma'am. Pleasure, sir. Thank you. Yeah, I'm done. Thank you. Good morning. I'm from Assam, Tinsukia. Yes, ma'am. Hello, good morning, ma'am. A very good morning to all of you. Hello, ma'am. We can hear you, ma'am. आप बोलिए अपनी बात. आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज बोलिए. Later on, I will raise my questions, but your okay, so it is almost 11:30. Yeah, ma'am. May I invite you, Pujari sir, our consultant of Regional Center Guwahati. Congratulations, sir, for a lot of hard work and getting so many teachers on this platform. Over to you, sir. Hello. Thanks. Yes, Pujari sir. Yeah, thank you, madam. Thanks to all the participants. Madam, you have delivered a very beautiful lecture, and it's a very motivating lectures. I hope all the teachers were very much greatly benefited through these inspiring words, and mainly what I want to emphasize on positivity and negativity. That's a very important point, because now the whole world belongs to the positive persons only. So anything in education, anything in teaching, anything in learning,
As Madam said, the positivity is the prime thing. And secondly, she has given you the tips for adopting so many new things in teaching process. And of course, very good questions are also there from this last one participant had asked, how can I apply culture in my mathematics teaching? So these are all very much good initiation and very much good interactive sessions. And we hope in coming all 5 days, we will have some this sort of things, this sort of very interesting sessions. Once again, I thank Saloni Madam, Sandeep Sharma ji, and you all for successful completion of our first session today. And now we are going to launch our second session from 11:30, 11:45. Now we will have a tea break. And again, 11:45 we will be assembled, and you will have a magnificent lecture on a different topic on archaeology, heritage and monuments, etc. So over to you, Sandeep Sharma ji. Please. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. And thank you all teachers